So good evening, everyone. Good evening. Good evening, good evening, and a very warm welcome to Mo TV. And so let us begin with today's topic. I know I've taken a bit of time today, but today again we are going to be talking of happiness. We all know happiness is as important as it can be. हम सारी जिंदगी शायद खुशियाँ ही ढूंढते रहते हैं जिससे हम अंदर से खुश हों. So हम लोग कहते हैं कि all happiness in the material world has a beginning and an end, but happiness in Krishna is unlimited and there is no end. Happiness can only be found within self. तो आप चाहे यहाँ कृष्णा का नाम ले चाहे किसी और का नाम ले, बात यह है कि जिस पे भी आप मान्यता रखते हैं उसमें है और अपने आप में है. So to talk about happiness, we have with us Dharam Rajji, who had come here last time from Krishna Consciousness. So you all know him already, but just to talk about him. So Dharam Das ji is a Chief Manager Marketing at PEC Limited, a Government of India enterprise, and is an alumnus of IIT Roorkee and has had more than 2 decades of experience in the field of international trade. He is also a public speaker on the subjects of foreign trade, personality development, and spiritual wisdom. He is a 2000 batch pass out from IIT Roorkee, where he completed his bachelor's in engineering in industrial engineering. By profession, he's engaged in the international trade of commodities and erection, procurement, and commission of turnkey projects. He also has extensive senior level administrative and management experience handling confidential organizational matters. He is a frequent speaker at various chambers of commerce and management institutes on the subject of foreign trade. He also regularly participates in various discussions on cross-country trade strategies initiated by the Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce, and embassies and foreign delegations. As a facilitator, he conducts workshops on soft skills such as time management, stress management, and communication skills, where he uses the wisdom for Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literature. He is also the co-founder of the Manas Mitra, an initiative to help caregivers to the mentally distressed. So, Ms. Dharamji, welcome to you once again, and very happy to have you on Mo TV. है क्या टमाटर है क्या? I will just request everyone to please mute themselves. मतलब I know सबके घर में खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, but right now we are going to concentrate on Dharam Rajji and the topic that he brings to us. So Dharam Rajji, a very warm welcome to you once again, and really, really wonderful to have you back here with a new topic. So over to you. Thanks a lot, Ritu ma'am, and Hare Krishna to all the assembled seniors who are here again. Once again, I'm very pleased, to address. And again, a bit nervous because I'm, with people who have, years of wisdom, and to, speak among them on any topic is itself a big challenge for me. Though I have been a speaker throughout, my career. Yet again, I would like to remind myself once again that seniors are all forgiving. So, I can be myself and be comfortable in whatever I have learned from my spiritual master and what I have learned from the Shastras and whatever I have learned by whatever other means I can share with you frankly. And you guys are wise enough to deduce, whatever is best for you from whatever is delivered today. So, as most of you might be present in our last session, where we discussed about being a super senior. Now, first of all, we will take a quick grasp at what we discussed in our last session. And so just to begin with, let me invoke blessings of my spiritual master for a moment, and it will be very short and we'll start immediately. Om Ajnanantimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurannilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्. So after seeking blessings of my spiritual master, I wish to share whatever power he gives me today. So last time we had discussed कि भाई ये सुपर सीनियर के ऊपर जो रिसर्च हो रही है विदेशों में, ये क्या चीज़ है, और सुपर सीनियर वो कौन लोग हैं जो अपना मेंटल और फिजिकल फैकल्टीज़ बजाय कि नीचे जाने की उम्र के साथ जैसा नॉर्मली होता है, उनके ना सिर्फ रिटेन रहती हैं, कई बार ऊपर चली जाती हैं. तो अब रिसर्च ने ये पाया कि क्या रीज़न्स होते हैं कि उनके साथ ऐसा होता है, उस पर रिसर्च हुई. और फिर फर्दर टॉपिक्स पे भी रिसर्च हुई है काफ़ी. तो क्योंकि अब 1 घंटे में जो भी हमसे संभव हो सकेगा अभी हम आपसे शेयर करेंगे, बिकॉज अभी जो वेस्टर्न रिसर्च है वो वैदिक विजडम के सिर्फ अंश मात्र मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके डिस्कवर कर पाती है. और हम लोग क्योंकि किन्हीं कारणों वश, क्योंकि हमारे चारों तरफ धर्म के और रिलीजियस विजडम के, वैदिक विजडम के डिस्टॉर्टेड वर्जन्स इतने ज़्यादा प्रस्तुत किए गए कि हमारा भरोसा उठ गया वैदिक विजडम से. अब एक बार फिर से बहुत सारे लोग वैदिक विजडम की तरफ मुंह मोड़ के उसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे जो विदेशी लोग हैं वो इसके अंदर सीरियसली रिसर्च कर रहे हैं. एटॉमिक एनर्जी रिसर्च से लेके और फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल से लेके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से लेके सब लोग भगवत गीता पे वेस्टर्नर्स एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं और उनको बहुत बेनिफिट्स भी हुए हैं. तो इट्स हाई टाइम कि अपने ही सामान की हम कुछ वैल्यू कर लें, क्योंकि बाहर वाले उसकी वैल्यू कर चुके हैं एंड वो एक्नॉलेज भी कर चुके हैं. ऐसा हम ये हवाई बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऑन पेपर प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेज किया है कि हाँ, ये वैदिक विजडम वो डिस्कवर कर रहे हैं. तो शुरुआत हम यूं करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या सीखा. कि लास्ट टाइम हमने सीखा कि एक टिपिकली ओल्ड एज को हम समझते हैं कि उसमें हमारी एनर्जी की कमी होती है, हमारे पास एंजाइटी टेंशन्स होती हैं और बहुत सारा लेमेंटेशन होता है, रिग्रेट होता है. और सुपर एजर्स क्या कहते हैं कि सुपर एजर्स में ये सब चीज़ें नहीं होते हैं. वो ज़िंदगी को आगे बढ़े, अपने बैलेंस ईयर्स में कुछ नया करने की सोचते हैं, फिजिकल और मेंटल रूप से एक्टिव रहते हैं और जो काम सोचते हैं वो करके रहते हैं. यानी उसमें टेनाशियस प्रोफाइल होता है. यानी कि सुपर एजर के 3 प्रॉपर्टीज कि अवॉइड ब्रेन श्रिंकेज. हमने पिछली बार उनके सिटी स्कैन्स देखे थे कि एज के साथ उनके ब्रेन का साइज श्रिंक करने के बजाय बढ़ जाता है या रिटेन रहता है एटलीस्ट. और उसका जो एक्टिविटी होती है, उसके अंदर जो आपस के न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं, उसके अंदर जो एक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है वो यंग पर्सन की डिटेक्ट की जाती है. और साथ में उनमें ये पाया गया है कि अगर उन्हें कोई काम दिया जाता है तो गिव अप नहीं करते हैं, टेनाशियस होते हैं, करके छोड़ते हैं. तो अब लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया कि ये चीज़ें जो वेस्टर्नर्स रिसर्च कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल में कैसे अचीव की जाती, कुछ चीज़ें वो पकड़ भी गए हैं. लेकिन हमारे वैदिक विजडम में तो यहाँ से शुरुआत है. इसके ऊपर की बहुत सारी स्टेजेस दी गई हैं जो हम बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्कवर कर सकते हैं. तो आज हम उसका पहले पायदान यानी लेवल 0 डिस्कस करेंगे. तो लेवल 0 में ये चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम डिस्कवर करेंगे. कि भाई सबसे पहले अगर यूथफुल प्रोफाइल हमारा रहना है, और हमने ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया कि जो 90 इयर्स के लोग थे उनके अंदर भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि उनको कुछ एक्सरसाइजेस कराई गई, तो माइनर से ही चेंजेस से उनमें के अंदर मेजर बेनिफिट पाया गया. तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर 90 प्लस का पर्सन इंप्रूव कर सकता है तो जो 50, 60, 70, 80 वाले इंप्रूव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. यानी कि हमारी एज हम बैलेंस की तरफ से देखें कि हमें और कितना हम आगे जा सकते हैं एज में, और हमारे कितनी बैलेंस है उसमें क्या हम बेहतर कर सकते हैं.
तो सबसे पहले अब आज का टॉपिक कि भाई यूथफुलनेस का जो एक प्राइमरली समझा जाता है कि एक यूथफुल पर्सन बहुत एक्टिव होता है और बहुत प्रसन्न रहता है, उसको खुशी के साधन या खुश नजर आता है। तो अब जब सबसे पहले ये समझने की कोशिश की गई कि भाई हैप्पीनेस है क्या, तो हैप्पीनेस के ऊपर वेस्टर्न में भी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं, बहुत समय से हो रही हैं, और जो कॉमन सर्वेज होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो उसके अंदर खासकर यंगस्टर्स से जब पूछा जाता है कि भाई आप हैप्पीनेस क्या है और हैप्पीनेस आपको कैसे मिल सकती है, आप हैप्पीनेस से क्या समझते हैं, तो लोगों ने सबसे ज्यादा जवाब दिया कि भाई हैप्पीनेस का मतलब ये है कि मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए। कुछ लोगों की डिजायर थी कि ओवरनाइट बहुत सारा पैसा मिल जाए, कुछ है कि भाई ओवर अ पीरियड हमको बहुत सारा पैसा मिल जाए। और फिर कहते हैं भाई पैसे का करोगे क्या, तो कहते हैं कि जी मैं बहुत सारा सामान खरीदूंगा, तरह तरह के फोन, मोबाइल, लैपटॉप्स, बाइक्स, कार्स, गैजेट्स, ये सारे के सारे सामान खरीदूंगा, यानी पोजेशंस खरीदूंगा। और फिर कुछ लोगों से पूछा गया कि तुम्हारी खुशी किस बात में, तो जो पॉलिटिकल स्टाइल के लोग थे या जो बड़े एम्बिशियस लोग थे वो कहते हैं कि भाई मुझे पावरफुल पोजीशन पे पहुंचना है। कुछ लोग जैसे यूट्यूबर टाइप, संगीत में रुचि रखने वाले, इस तरह के लोग कहते हैं कि जी मैं फेमस होना चाहता हूँ, मेरे पास यूट्यूब पर फॉलोअर्स होने चाहिए, सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, फेम चाहिए मेरे को। और लोगों से पूछा गया अक्रॉस द एज स्पेक्ट्रम कि भाई आपको खुशी फिर और किन चीजों से मिलती है, तो कहते हैं कि मुझे मेरी सब खाने पीने का बहुत शौक है, मैं जगह जगह जाके जगह तरह तरह की चीजें खाना चाहता हूँ, और यहाँ की ये चीज फेमस है, ये खाना चाहता हूँ, वो खाना चाहता हूँ, घर में भी दिन रात बनाना चाहता हूँ, मुझे आई एम अ फूडी, आई लाइक टू ईट। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरे को इतना पैसा चाहिए मैं पूरी दुनिया घूम सकूं। अब कुछ यंगस्टर्स का ये रहता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये फला फला लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरा एम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि दुनिया में तरह तरह की इंटॉक्सिकेशन है, तरह तरह की ड्रग्स हैं, तरह तरह की वाइन्स हैं, मैं सब टेस्ट करना चाहता हूँ, और सब में मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं महंगी से महंगी यानी इंटॉक्सिकेशन कर सकूं। तो इस तरह के सर्वे में पाया गया कि खुशी लोग आइडेंटिफाई किन बातों से करते हैं। फिर एक और एनालिसिस हुआ जो कि हमारे ही साहित्यकारों ने कई बार, फिलोसफर्स ने, साहित्यकारों ने बड़ा ब्यूटीफुली इससे इलैबोरेट किया है कि एक जब वो कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका खुशी क्या होती है, उसकी खुशी उसके माँ की गोद में होती है। जैसे ही माँ की गोद से नीचे उतरता है वो रोने लगता है, तो और जैसे ही माँ की गोद में जाता है वो प्रसन्न हो जाता है। फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है तो उसकी खुशी सारी की सारी टॉयज के अंदर होती है, उसको तरह तरह के खिलौने चाहिए, तरह तरह की कारें, फीमेल्स को गुड़िया बार्बी डॉल तरह तरह की चाहिए होती है, लड़कों को गन्स और कार्स चाहिए होती हैं तरह तरह की। तो इस तरह से खुशी ढूंढते हैं, यानी कि माँ की गोद से खुशी ट्रांसफॉर्म हो जाती है टॉयज में। फिर बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं और उनको तरह तरह की चीजें, पहले तो छोटे बच्चों को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है वो मांग मांग के तरह तरह की डिशेस खाता है, उसके खाने में रुचि डेवलप हो जाती है। और थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है, उसको वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट होता है, साइकिलिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगता है। और बड़े बच्चे होते हैं, टीनेजर्स हो जाते हैं, टीनेज क्रॉस करने लगते हैं, तो उनकी क्या बाइक्स चाहिए होती हैं तरह तरह की, और उनका एम भी रहता है कि भाई जो लड़की पसंद है वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, वो एम रहता है, तो उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। फिर माँ बाप भी पुश करते हैं, उनको भी समझ में आता है कि अगर आगे लाइफ एंजॉय करनी है तो भाई हमको हायर डिग्री चाहिए, बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब चाहिए, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई में मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मार्क्स के लिए जद्दोजहद, मार्क्स आते हैं तो खुशी, और मार्क्स नहीं आए तो बहुत लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं। तो खुशी की डेफिनेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अब अगर आपको एक चाहिए हो तो कोई चीज आपको प्रोवाइड की जा सकती है, अगर आप रोज अपनी समस्या बदल दो तो भाई आपको क्या दिया जाए ये फिर दूसरों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। हाई पेइंग जॉब मिल जाती है, उसको पैसा मिल जाता है, फिर उसको बंदे को शादी करनी होती, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करने होते हैं,
बच्चे पैदा करने के बाद में उसको बच्चों की वेलफेयर के लिए और पैसे कमाने होते हैं। पैसे कमाने के साथ साथ फिर उसको फर्दर और ग्रोथ चाहिए होती है, करियर में प्रमोशन चाहिए होता है, पावर प्रेस्टीज चाहिए होती है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों का वही सेम साइकिल रिपीट उसको अपनी आंखों से देखना होता है कि मेरे बच्चे का बड़ा होना, शादी, प्रमोशन, करियर, फिर उसके बच्चे हो जाए तो वही पे सेम साइकिल रिपीट। यानी कि जो डिजायर्स हैं पहले अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, और फिर अपने बच्चों के लिए वो सेम साइकिल रिपीट होता है। अब एनालाइज करने का ये सब्जेक्ट मैटर है कि क्या ये चेंजिंग चीजों के साथ भी हमारी जो डिजायर्स हैं या हमको जो खुशी मिलनी चाहिए वो मिलती है कि नहीं मिलती है। क्या आप सब लोग अपने जो पास्ट में ये इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि जब आपने ख्याल आया कि जी मेरे को ये जिंदगी में हो जाए, सिर्फ तब हल्की सी खुशी आई कि यार हो जाए तो मजा आ जाए, एक स्पार्क आया, तो सैंपल दिल में है ना, वो सैंपल महसूस हुआ, वो खुशी हुई। जब आपको वो चीज मिलने का समाचार मिला कि हाँ जी मेरे बच्चे की शादी तय हुई, तब एक खुशी हुई। लेकिन ना जॉब मिल गई तब खुशी हुई कुछ, लेकिन उसके बाद में क्या वो खुशी रिटेन हुई कि उसके बाद में बल्कि उल्टा आपको टेंशन बढ़ती चली गई? क्या एग्जैक्टली हुआ कि जिस चीज के लिए आप इतना इंतजार किए थे उसके समाचार पे तो आपको हल्की सी खुशी हुई, लेकिन उसके बाद में खुशी के बजाय समस्याएं खड़ी होती चली गई। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूशन में, कुछ हम गलत कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो अब ये हम आज एनालाइज करेंगे, और ऐसा भी है हम कोई नेगेटिव डिस्कशन के लिए नहीं बैठे हैं कि जी ये सब बेकार है, सब मिथ्या है। मिथ्या कहने के लिए नहीं है, इसका डिस्कशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो भी कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा। तो वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस समथिंग इन द एयर, हवा वाली की बात करने के लिए नहीं है। तो अब उसके बाद में हम आते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई हमें खुशी मिले ना मिले, लेकिन ये जो झंझट मिलता है या प्रॉब्लम्स मिलती हैं ये हमको भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपकी खुशी, बहुत बार आपकी जिंदगी में आपको इतनी प्रॉब्लम्स मिलती हैं कि थोड़ी ज्यादा जो भी प्रॉब्लम्स मिले, आप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई खुशी मिले ना मिले, झंझट ना मिले जिंदगी में। ये बहुत बहुत बड़ी डिजायर होती है हमारी, क्योंकि खुशी का क्या फायदा अगर उसको चारों तरफ हम तकलीफों से घिरे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि अगर डील ये है कि भाई एक खुशी के साथ 10 मुसीबतें आ रही हैं तो भाई हमें वो खुशी भी नहीं चाहिए, वो ले जाओ। तो हमारा कहता है भाई झंझट काटो। तो इस तरह की हमारी फीलिंग आ जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि खुशी प्राप्त करने के लिए हमने जो काम किए और दुख हमें किस किस तरह से प्राप्त होता है। ये एक शॉर्ट एनालिसिस हम कर सकते हैं कि भाई जो हमारे जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनको खाने, पहनने और सोने के लिए छत नहीं है, उनके दुख एक अलग प्रकार के। लेकिन अगर हमें ये सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं तो हमारी समस्या क्या है, हमारा दुख किस बात का है कि हमें वो चीजें चाहिए जो हमारे लिए लग्जरी, हम डिजायर, जरूरत में भी हमारे को बाइक से जाके काम चलता है, लेकिन हमको कार चाहिए। अब कार भी अब हमारी जरूरत हो गई है, और जब कार मिल गई तो हमें बड़ी कार चाहिए। और अगर हमें घर मिलता है तो फिर दूसरे का देखते हैं तो बड़ा घर चाहिए। अब सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे जीवन में कि हमें दुख क्यों मिलता है कि अगर हमें भगवान और अपने कर्मों के कारण अपनी डिजायर्स हमारी पूरी हो भी जाएं, तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जैसे ही हम किसी पार्टी में जाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं, किसी के गृह प्रवेश में जाते हैं उसका बहुत बड़ा घर देखते हैं, किसी पार्टी में देखते हैं कि दूसरे का मतलब शादी ब्याह बहुत अच्छा हो रहा है दूसरे के घर में, तो हमें लगता है कि हमें इससे भी बड़ा करना है, और नहीं हो पाया तो हम बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं। इवन इतने वेल टू डू होने के बाद में भी अगर हम रेस्टोरेंट में जाएं और बगल वाले को खाते देख लें कि वो बहुत लैविश कुछ खा रहा है, तो हमारे को देख के कुछ विचित्र से बहुत दिल में उत्पन्न होने लगते।
तो अब क्या है कि ये इनवाइटेड मिजरी है, यानी कि जो मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है, उस समस्या के कारण हम लोग बहुत 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 दुखी रहते हैं। अनइनवाइटेड मिजरीज होती हैं और जिसको हम आराम से टैकल कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लूप में फंस जाते हैं और दुखी होने की कोई वजह नहीं है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम ऐसे लूप में फंसते हैं तो हम यही तरह के फालतू के दुख के कारण अपनी हेल्थ खराब करते हैं, अपने मन की शांति खराब करते हैं, फिर डॉक्टर को पैसे देते हैं, क्योंकि जब मन खराब होता है तो शरीर पक्का पक्का खराब होता है। ये वेस्टर्न रिसर्च से लेके वैदिक विजडम तक कॉमन स्टैंड है और इसके अंदर कोई दूसरा किसी का ओपिनियन नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो अब गिवन बात ये है कि भाई दूसरे की साड़ी देखना हम कैसे बंद कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और कोई सीनियर्स का ही नहीं, छोटा सा बच्चा भी जब दूसरे बच्चे के पास अपने से बेहतर खिलौना देखता है तो वो दुखी हो जाता है, और एक सीनियर पर्सन दूसरे का बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा बैंक बैलेंस के बारे में जब जानकारी हासिल करता है तो वो दुखी हो जाता है। और जितना वो करीबी दोस्त है उसका, अगर उसका कुछ गाड़ी ज्यादा बड़ी है, घर बड़ा है, तो उसको देख के और ज्यादा दुखी है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये अनवांटेड तकलीफों से कैसे बच सकते हैं। वैसे तो हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये तो ह्यूमन नेचर है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं, जिंदगी बीत गई हमें इस तरह का करते करते। लेकिन बहुत सारी चीजों को अगर हम अनडिजायरेबल जिंदगी भर से हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा होता रहे वैसा। तो अब फिर हमने कुछ तरह की प्रॉब्लम्स की बात करी। अब शास्त्रों में प्रॉब्लम्स भी या सफरिंग भी 3 तरह की बताई गई। एक है आदि भौतिक, यानी कि इसके में है कि भाई हमको बीमारी हो जाए किसी तरह की, मतलब, और क्रॉनिक डिजीज हो जाए, हम लगातार रोज सफर कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, मेडिकेशन हो रहा है, उस दवाई से और दर्द हो रहा है, दवाइयां रिएक्ट करती हैं, तरह तरह की दिक्कत होती हैं, ये सब आदि भौतिक आपदाएं यानी एक्सटर्नल सफरिंग। फिर ये है कि फिर दूसरा कैटेगरी आता है आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब है कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, और आजकल हम आदि दैविक आपदा, भाई कोरोना एक आदि दैविक आपदा है, यानी कि इट इज फॉर एवरीबडी, नंबर 1, and then it has been caused by external factors, you are not responsible for it primarily। तो अब क्या है कि कोरोना जैसी चीज जो चारों तरफ फैली हुई है, आदि दैविक आपदा है, चारों तरफ हम लोग मृत्यु का समाचार सुन रहे हैं, लोगों के मृत्यु से बदतर उस इलाज से सफर करते देख रहे हैं, इलाज ना मिल पाने की सफरिंग है। तो ये सब हम सब लोगों को घर पे बैठे बैठे ही दुख दे रही है, ठीक है। जो लोग सफर कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग समाचार सुन रहे हैं, और जितना ज्यादा न्यूज जो सुन रहा है वो उतना ज्यादा दुखी, मतलब, तो अगर कम न्यूज सुने तो थोड़ा सा कम दुख होगा, ज्यादा न्यूज सुने तो ज्यादा दुख होगा। तो अल्टीमेटली ये आदि दैविक आपदाएं हैं जो हमें तरह के परेशान करती हैं। तो अब खुशी की बाधाएं क्या हैं कि भैया हम खुद ही एक तो अपने खुशी का दुश्मन है, ठीक है, दूसरे की साड़ी देख के दुखी हो जाते हैं और अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा लेते हैं, ज़रूरतें मतलब अपनी डिज़ायर्स इतनी बढ़ा लेते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। और फिर दूसरा, ये कोरोना जैसी महामारियां हमें दुखी करती हैं। तो यानी कि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों हैं। और तीसरी तरह की आपदा जो बताई गई है वो है आध्यात्मिक, यानी कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो कलयुग का जीव है, और भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो कलयुग में रहने वाले लोग हैं वो अगर उनको कोई रीजन नहीं भी दिया जाए तो भी वो डिस्टर्ब्ड रहेंगे। आप लोग अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके पास कोई कारण आपको नहीं समझ में आ रहा था, कोई परेशान हो, क्योंकि फिर भी आप इरिटेटेड थे, फिर भी आप परेशान थे। तो ये कलयुग का सिम्टम है। तो हमने इतने सारे तरह की नेगेटिव बातें कर ली। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई
इसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। अब क्या है कि हम लोग अक्सर क्या है, निराकरण के लिए एक्सटर्नल बाहर निकल के देखते हैं, और पूरी दुनिया का बिजनेस भी आपको पता है आपको खुशी बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। जितने ऐड वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी खरीद लो तो आप खुश हो जाओगे, हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, बत्तीसी दिखाइए, पूरा फैमिली हैप्पी हो जाएगा, मतलब ठीक है, और हमारे ये खाने पीने की चीज़ें पैक्ड फूड खाइए तो आप खुश हो जाएंगे, हमारा डिटर्जेंट इस्तेमाल कीजिए तो आपकी फैमिली हैप्पी हो जाएगी, हमारा प्रेशर कुकर इस्तेमाल कीजिए तो ये प्रूव होगा कि पति पत्नी के बीच में प्यार है। अब जो ये ऐड वाले हैं ये आपको रोज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा दुखी हो और आप खुश कैसे हो सकते हो, सिर्फ हमारे को सामान खरीद के ही आप खुश हो सकते हो। तो ऐड का एक एक मैसेज, एक एक मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, इट इज सेंटर्ड अराउंड मेकिंग यू रियलाइज हाउ सैड यू आर। और सोशल मीडिया एक्चुअली अब ऐड को क्या जिम्मेदार दें, हर आदमी अपने आप को फेसबुक पे अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश साबित करने पे तुला हुआ है और आपको बताने पे तुला हुआ है कि वो कभी कई लोग ड्रेसेस ही फेसबुक पे फोटो पोस्ट करने के लिए खरीद लेते हैं, घूमने जाते हैं तो उस पे फेसबुक पे तरह तरह की फोटो पोस्ट करते हैं और दूसरों को साबित करते हैं कि हाउ दे हैप्पी दे आर एंड हाउ सैड यू आर। तो क्या है ना, वो खुश हुआ हो ना हुआ हो ड्रेस पहन के, वो खुश हुआ हो ना हुआ हो घूम के, लेकिन आप दुखी जरूर हो जाते हो उसका फोटो देख के फेसबुक पे। तो अब भाई ये क्या कहानी है कि हर आदमी मेरे को दुखी करने पे तुला हुआ है। ये ऐड कंपनी वाले हमको रोज बताते हैं कि यार ये कार है बहुत बढ़िया, मेरे पास तो छोटी कार है, ठीक है, लार्ज कार चाहिए, मैं दुखी हूँ। अब मैं वहां घूमने नहीं जा पाया, मेरे दोस्त यूरोप का टूर पे चला गया, अब मैं कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, उतना पैसा कैसे इकट्ठा होगा, मैं दुखी हूँ। मेरे अपने भाई बहन ही किसी रेस्टोरेंट में जाके और लैविश डिनर करके फोटो पोस्ट कर देते हैं और हमको साबित करते हैं कि जी मैं नहीं गया, मैं दुखी हूँ। तो ये क्या पूरी दुनिया की कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे को दुखी साबित करने के लिए? ये कहानी है क्या? तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम लोग क्या बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी का शिकार है। पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हमको वोट दो तब हम आपकी जिंदगी सुधरेगी, आपकी जिंदगी तो एट प्रेजेंट पार्टी ने नाश कर रखी है। फिर दूसरा आता है, फिर वो पहला वाला बोलने लगता है कि जी आपने बहुत बड़ी गलती करी और दूसरे पार्टी को वोट देकर। यानी कि मेरी जिंदगी की खुशी पॉलिटिशियंस पे, एड कंपनी वालों पे, मेरे रिश्तेदारों पे, सब पे निर्भर करती है। यानी मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ दुखी होने के लिए बना हूं, दुखी होने की मशीन वो रखे हूं मैं क्या। तो अब ये तो हमें समझना पड़ेगा कि भैया अगर हमको लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि हम खुश नहीं हैं, और जैसा कि पहले सेशन में डिस्कस हुआ था कि खुश ना होने की वजह से मैं और बीमार हो रहा हूँ, मेरी हेल्थ खराब हो रही है और मैं अननेसेसरी ओल्ड एज के जो आपदाएं हैं उनको सहन कर रहा हूँ, तो ये सारी मुसीबत का कुछ इलाज बताओ भाई। ठीक, अगर आप इतना डिस्कशन कर रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम वापस आते हैं कि पिछले सेशन में जो हमने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च डिस्कस करी थी। अब समहाउ मैं 20 साल से अपना पैटर्न देख रहा हूँ कि मैं कहीं पर भी कुछ शोध करता हूँ तो मैं हार्वर्ड स्कूल ही घूम फिर के पहुंच जाता हूँ। अब समहाउ ये है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सैकड़ों मतलब 100 साल से वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी बड़ी ऑथेंटिक हैं, इसलिए मुझे शायद अपील करती हैं और उन पे लोग भरोसा भी करते हैं। भाई हमारे भगवत गीता पे करे ना करे, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च पे भरोसा करते हैं। तो भाई मैं पहले उनको प्रणाम कर लेता हूँ कि भाई उन्हीं की बात मान लो, भगवत गीता नहीं मानो। तो सबसे पहले भाई हार्वर्ड भैया क्या कहते हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। 1938 में हार्वर्ड ने क्या है लोगों की वेल बीइंग और लोगों की ग्रोथ और लोगों की जिंदगी में कैसे हैप्पीनेस होते हैं, कैसे दुखी होते हैं, इस बात पे रिसर्च शुरू करी।
724 लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, जिसमें से सिर्फ अभी 60 लोग जिंदा बचे हैं और 60 के 60 90 प्लस हो चुके हैं। इस पूरे 724 लोगों में उसमें उन्होंने हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग इकट्ठा किए और दूसरा बिल्कुल बॉस्टन के जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको रिसर्च की स्टडी में रखा और उनसे हर साल या हर 2 साल में उनका मेडिकल चेकअप कराते हैं, उनके बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं, उनकी पत्नी से इंटरव्यू लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे रिटन क्वेश्चनर भरवाते हैं ताकि उनकी स्टडी में एक पैटर्न को जज कर सकें। और इस पूरे ग्रुप में कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, कुछ लोग बहुत बड़े फेलियर्स थे, कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया, कुछ लोग बिल्कुल ही कंडम हो गए, कुछ लोग यूएस के प्रेसिडेंट तक बन गए। ठीक है, अब उन्होंने इतने के बाद में इतने बड़े 75 साल की रिसर्च के बाद में जो कंक्लूड किया है कि खुश लोग कौन हैं। भाई वहां तो 75 साल से लोग भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो लोग कौन हैं जो खुश हैं, तो हमें रिलेटिवली समझना पड़ेगा कि खुश लोग वो हैं जिनके अपने परिवार, मित्रों और सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स, जो अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू देते हैं, जो अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं, वो लोग पसंद हैं। और जो लोग अपने रिलेशन से कट ऑफ होते हैं, जो अपने रिलेशनशिप्स के साथ ठीक से बना के नहीं रखते या फिर बना के रख नहीं पाते हैं, वो सब लोग, उनकी हेल्थ खराब धीरे धीरे हो जाती है, वो लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये हार्वर्ड की रिसर्च का रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हमने अभी तक की बात से एक निष्कर्ष निकाला कि भैया अच्छे रिलेशनशिप जीवन में जरूरी हैं अपनी वेलबींग के लिए, मेंटल फिजिकल वेलबींग के लिए। ये हार्वर्ड भैया की रिसर्च का रिजल्ट है। अब आगे आते हैं कि भैया हार्वर्ड ने ये कहा, अब फिर बाद में वहाँ की जो और रिसर्चर्स हैं वो क्या कहती हैं कि भाई अब हम आपने बात करी कि भाई जो लोनली पर्सन है वो ठीक नहीं है, जो दूसरों से बना के नहीं रखता, परिवार मित्रों से बना के नहीं रखता। तो भाई ऐसा है ना, उन्होंने एक और बात पॉइंट करी कि आप ये नहीं कह सकते कि जो लोगों से मिलता जुलता है वो लोनली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई लोग क्राउड में लोनली होते हैं, क्राउड में लोनली होते हैं और जो डीम्ड हैप्पीली मैरिड में भी लोनली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी मैटर करती है, रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती। तो हार्वर्ड भैया ने बड़े काम की बात बताई, हमें समझनी चाहिए कि भाई क्वालिटी मैटर करती। ये नहीं कि आपने 100 लोगों से आपसे दोस्ती है लेकिन किसी से आप अपने दिल का हाल नहीं कह सकते, तो ऐसी दोस्ती का कोई लाभ नहीं है। और इवन सेमली है कि पति पत्नी के रिश्ते में भी लोग अकेले हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं होता। सामंजस्य कम उन्होंने ये पॉइंट आउट किया रिसर्च ने। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपल लड़ाई नहीं करते, कहते हैं अच्छे कपल जम के लड़ाई करते हैं, होलसेल में। कहते हैं आप लड़ाई को बिल्कुल इंडिकेटर ना समझें कि रिलेशनशिप खराब है, बल्कि कभी कभी जितनी ज्यादा लड़ाई होती है उतना बढ़िया रिलेशनशिप होता है। ये हार्वर्ड की रिसर्च कहती, क्योंकि वो अपने दिल की बात बाहर निकाल लेते हैं, अपना बिल्कुल क्लियर रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव नहीं रखते पति पत्नी, मतलब ये रिसर्च कहती है। तो कहते हैं कि अगर 80 साल के भी लोग हैं जिनको ये पता है कि मेरा पार्टनर चाहे जो कुछ हो जाए वो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये विश्वास जब लोगों के हृदय में होता है तो लोग प्रसन्न महसूस करते हैं और हेल्दियर महसूस करते हैं, इवन 80 साल की एज में। तो ये रिसर्च के कंक्लूजन्स हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा, तो बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते। तो एनीवे, हम वहां से लेके आए भगवत गीता तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसी पर्पस के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि भाई उन्होंने कुछ डिवाइस किया कि भाई ये जो प्रसन्नता है इसका तत्व क्या है, मतलब प्रसन्नता से क्या आप समझते हो कि प्रसन्नता कब हासिल हो सकती है व्यक्ति। ये उनके लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्पिरिचुअल विजडम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में वो दूसरा लेवल आ जाएगा।
एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस के वो बताते हैं, एक तो लोगों से कनेक्शन, यानी कि जो आपके फैमिली, मित्रों या अन्य वाइज सभी लोगों से जो कनेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी की। फिर एक तत्व है अप्रिसिएशन। क्या आप अपने मित्रों को और फैमिली को अप्रिशिएट करते हो, या बदले में वो आपको आपके किए गए कामों के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये आपकी और उनकी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी तत्व है। एंड अप्रिशिएशन इज समथिंग व्हिच इज एनकरेज्ड इवन इन आवर वैदिक विजडम, कि भाई हम लोग को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि जो कोई जो कार्य करे उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, ये दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा जायंट चीज है जो रिसर्च ने किया, फाइंड आउट, एंड अगेन वैदिक विजडम का हिस्सा, दैट इज एक्सेप्टेंस। अगर आप अपने पति पत्नी, अपने बच्चों से कंप्लेंट करते रहेंगे कि भाई अरे भाई उसकी जिंदगी हो गई है बीइंग लाइक दैट, ओके, उसको चेंज फर्दर होना होता तो हो गया होता, ठीक है। अब अगर आप उसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अपने लिए और उसके लिए तकलीफ का माहौल डेली बिल्टअप कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्या है, प्रसन्नता बेहतर हासिल होगी, ठीक है। फिर अगेन आते हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। भाई जैसे कि छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बम्पर, यानी कि जो आपके करोड़ों का जैकपॉट लगेगा लास वेगास जाके, इसके लिए खुशी के लिए क्यों इंतजार करना? खुशियां छोटी छोटी चीजों में अगर हम खोजते हैं तो खुश होने के लिए एक बेटर एवेन्यू रहता है, ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और फिर ये है कि आप क्या जिंदगी में कुछ नया सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो एट एवरी एज। अगर आप कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइज में, जैसा लास्ट टाइम हमने डिस्कवर किया था, पार्टिसिपेट करते हैं, आपका शरीर की एक्सरसाइज और मेंटल की एक्सरसाइज दोनों करते हैं, तो आपको क्या होगा कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर रहेगी, आपके लेसर रिस्क रहेंगे डिमेंशियाज या अदर अल्जाइमर इस तरह के डिजीज डेवलप करने की, ठीक है। ये सब तो भाई रिसर्च ने कहा, जो हमने आपके साथ एज इट इज शेयर किया। और फिर कुछ रिसर्च उन्होंने ये कहा जो प्योरली हमारे शास्त्रों में बड़े इलैबोरेट करके दिया गया है, कि जब तक आप खुद के लिए काम करते रहते हो, आप खुद के लिए हैप्पीनेस डिजायर करते रहते हो, तब तक आपको हैप्पीनेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। हैप्पीनेस इज समथिंग, जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो भागती रहेगी। वो गधे के सामने लगी हुई गाजर की तरह है, कि अगर आप उसको, जैसे गधे के को पहले लेजी एनिमल मान के उसको भाई आगे कहते हैं गाजर लटका दी जाती थी, गधा गाजर को देख के आगे बढ़ता रहता था, वो गाजर लटकी हुई भी आगे बढ़ती चली जाती थी, खुशी मिलती नहीं थी, न गधे को ना गाजर मिलती ना हमें खुशी मिलती। जब हम दूसरों को प्रसन्नता देने का प्रयास करते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट है कि हमें आराम से प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसीलिए कई बार आप चैरिटी करते हो, किसी को ब्लड डोनेट करते हो, किसी दूसरे के लिए कुछ करते हो, तो एक ऐसी विचित्र सी हैप्पीनेस प्राप्त होती है जो आपके लिए एक्सपीरियंस करना, बता देने पाना मुश्किल होता है। तो अब हमें समझना होगा कि भाई जो शास्त्र है उसके अंदर अगर हमें प्रेम की डेफिनेशन बताई गई है, वो क्या बताई गई है? हमारे शास्त्रों में प्रेम की डेफिनेशन बताई गई है कि व्हेन यू वांट टू सर्व द अदर पर्सन, सर्व यानी कि उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डैम थिंग इन रिटर्न, कुछ भी वापसी में नहीं चाहिए आपको किसी भी कॉस्ट पे, तो उसे प्रेम कहते हैं, ओके। एंड बाकी सब शास्त्र में बड़ी, मतलब यहाँ हवस का वो मीनिंग नहीं है जो आप मूवीज में देखते हो, मतलब जो अपने लिए आपको जो चाहिए वो आपको मैडनिंग एक्सपीरियंस होता है, आपको पागल कर देता है, आपको डिस्टर्ब कर देता है। तो अल्टीमेटली एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रसन्नता दूसरों को देने से मिलती है। तो अब रिसर्च ने भी ये चीज आइडेंटिफाई करी कि जो सेल्फलेस एक्ट हैं उनको करने से यू फील हैप्पी, एंड सेल्फिश एक्ट करने से यू फील डिप्रेस्ड, ठीक है।
अब एक चीज आपको समझनी होगी कि आपको जो सबसे अच्छा रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ क्यों महसूस होता है। वीजा वी भले आपके बच्चों को आपके प्रति उतना महसूस ना हो, लेकिन आपको हमेशा अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छा, जब आप उनके लिए कुछ भी करते हो, भले वो रिटर्न में कुछ ना करें, आप बहुत प्रसन्न महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उनको देना चाहते हो, आप उनसे आशा नहीं करना चाहते। ठीक है, हमेशा यू आर वेल, वो करे ना करे, नालायक बच्चा हो, लेकिन फिर भी आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो। इसीलिए आपको प्रसन्नता होती है, क्योंकि वहां पे यू एक्ट सेल्फलेसली, आप बिना किसी स्वार्थ के एक्ट करते हो, इसलिए आपको प्रसन्नता होती है। तो वो फॉर्मूला अगर भाई पूरी दुनिया में आप लगा दो तो आप पूरे टोटल प्रसन्न हो जाओगे। तो भाई इंट्रोस्पेक्ट करना है, रिसर्च हमारे बीच से ही निकलेगी, अपने ही एक्सपीरियंस से हम समझ सकते हैं, कहीं बाहर से हमें नहीं समझना है। और वैदिक विजडम क्या है, भगवत गीता क्या बताया गया है, ह्यूमन बॉडी का मैनुअल है। अब आपकी वॉशिंग मशीन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, अब आप रोने करोगे, चिल्लाने लगोगे, ना मैनुअल खोल के देखोगे कि आपने इसको स्विच गलत ढंग से लगाया, स्विच ढंग से नहीं दबाया, और ना ही टेक्नीशियन को बुलाओगे, रोना चिल्लाना शुरू कर दोगे, कहानी खत्म। तो भाई जब भगवान ने इंसान को एक मैनुअल दी, भगवत गीता, अब आप उस बॉडी को ऑपरेट कर रहे हो बिना मैनुअल के। मैनुअल नहीं पढ़ना, किसी टेक्नीशियन को बुला लो। टेक्नीशियन का मतलब भगवत गीता के जानकार भक्त से अगर आप एडवाइस ले लेते हो तो भी ठीक है, वो टेक्नीशियन है आपका, क्योंकि वो भगवत गीता वो मैनुअल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप या तो खुद मैनुअल पढ़ लो या फिर टेक्नीशियन से एडवाइस ले लो। मैनुअल में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी टेक्नीशियन से पूछ लो या बड़े इंजीनियर को कंसल्ट कर लो, तब आप अपनी मशीन को ठीक से चला सकते हो। सारी समस्या इसी बात की है पूरी दुनिया में कि हम अपना जो शरीर रूपी मशीन है उसको अपने मनगढ़ंत तरीके से चलाए जा रहे हैं, इसलिए मशीन मिसबिहेव कर रही है। तो अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शास्त्र हैं, इसीलिए भगवत गीता में भी कृष्ण ने बार बार ये मतलब डिफाइन किया है कि जो लोग शास्त्र में यकीन नहीं रखते उनके लिए कुछ बेहतर करना, अपनी जिंदगी ठीक से जीना और हैप्पीनेस को प्राप्त करना, वो तो खैर इम्पॉसिबल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अब उसकी क्या रीजंस हैं कि भाई जो सेल्फलेस रिलेशनशिप वाले बच्चे भी हैं, जब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको बिल्कुल डेस्परेट हालत में अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे तो बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। तो क्या होता है सेल्फलेस का, इस मटेरियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप सेल्फलेस होने के बाद में भी समस्या खड़ी कर देती है। तो यू नीड समथिंग इटर्नल जो फेल ना करे, जिसकी गारंटी हो। तो अब गारंटी वाला प्रोडक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ही आज और समझेंगे, क्योंकि इतनी एनालिसिस कर सकते हैं हम गिवन टाइम में। फर्दर एनालिसिस के लिए सब्सिक्वेंट सेशंस में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हमने एक कंक्लूजन लगाया कि अभी तक के डिस्कशन का क्या कंक्लूजन है कि भाई पहली बात तो अपना क्लियर कट समझें कि हमारी क्या ज़रूरत है और क्या हमारी फालतू की डिज़ायर्स है, और क्या हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने किसी दूसरे के पास देखा इससे बड़ा। क्या हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं या क्या चीज़ हम आउट ऑफ एनवी कर रहे हैं। फिर तीसरा प्रिंसिपल कि भाई हम गुड रिलेशनशिप्स कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि हम प्रसन्न रहें और हैप्पी रहें। और सबसे बड़ी बात, जो संसार के दुख तकलीफ आते हैं उनको हम कैसे फेस करें, क्योंकि अगर हम दुख तकलीफों से घिरे हुए हैं तो हम मतलब कैसे हैप्पी हो सकते हैं। तो जब भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई दुख तकलीफ आके उसको नाश कर देता है। और लोग जो भगवत गीता के बारे में डिस्कस करते हैं वो कहते हैं कि भाई सारे जो आपके दुख तकलीफ है उनका कारण आपका पास्ट कर्मा है। अब कर्मा का मतलब कि भाई मैंने रात को मिर्ची खाई, आज मेरा पेट खराब हो गया, कल रात का कर्म हो गया।
मैंने अभी किसी को थप्पड़ मारा, उसने मुझे वापस में थप्पड़ मारा, ये अभी का कर्म हो गया। ठीक है, मैंने अभी हफ्ते भर पहले कहीं मैं ठंड खा गया, मेरी पूरी हफ्ते भर वायरल हो गया, ये मेरे 1 हफ्ता पुराना कर्म हो गया। और इसी प्रकार से मैंने जिंदगी भर अगर अच्छे से पढ़ाई करी तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी नौकरी मिली, वो मेरा जिंदगी अभी इस जिंदगी का कर्म हो गया। मैंने एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए, मतलब सोच समझ के एक अच्छे पर्सन से विवाह किया, मेरी अच्छी जिंदगी हुई या खराब जिंदगी हुई, वो मेरा जो भी है 10, 15, 20, 30, 40 साल पुराना हो गया इन्वेस्टमेंट या कर्म। मैंने कभी कोई पैसा 15 साल पहले इन्वेस्ट किया, वो ज्यादा बढ़ गया। जो अभी 1 साल पहले इन्वेस्ट किया वो हार्डली नहीं बढ़ा। तो क्या है, वो इनपुट कभी किया तो उसका आउटपुट अपने अपने ड्यूरेशन के हिसाब से निकलना है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई ये पूर्व जन्म कुछ नहीं होता, हम नहीं विश्वास करते, तो भगवत गीता में हम उनका भी स्वागत करते हैं। और जो लोग ये मान लेते हैं कि हाँ भाई पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें ये आज दुख तकलीफ सहने पड़ रहा है, और जो हमारी खुशी में बाधा बन रहा है, खुशी की तो आप क्या बात कर रहे हो, खुशी तो मिलती ही नहीं, मैं तो दुख तकलीफों से परेशान हूँ। और आप कह रहे हो कि अगर पूर्व जन्म में अगर मेरे सारे कर्म कर रखे वो रीजन है, तो मेरे हाथ में है क्या? आज जब मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं, तो डिस्कशन किस बात का हो रहा है? अगर मेरे को दुखी होना है और मेरा डेस्टिनी है, मैं डेस्टिनी के कारण फंसा हुआ हूं, तो मैं कर क्या सकता हूं? फिर ये भगवत गीता की बातें और डिस्कशन क्यों कर रहे हो? तो कोई कहेगा कि नहीं जी, आप आगे अच्छा कर्म करो, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो कहते हो भाई साहब, आगे का अच्छा कर्म तो मैंने कौन सा किसी का डकैती डाल दी है, मेरा कर्म सब ठीक है, मैं तो आज दुखी हूं, उसका कुछ इलाज बताओ। तो भगवत गीता उसका भी पक्का पक्का इलाज बताती है। वो बात अलग है कि वो कहीं आराम से डिस्कस नहीं होता, जो हम आज डिस्कस। देखो मामा मौसी कहीं चले जा रहे हैं क्या? पकड़ो मामा मौसी को। महिमा जी बंद करो अपना, महिमा जी। थैंक यू मैम। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई हैप्पीनेस की हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स, अभी हमने कुछ कर्म की बात करी, और मिजरीज के मिटिगेशन कैसे हो वो बात करी। तो अब ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि जी मैं कर्म में बिलीव नहीं करता, मैं पिछले जन्म के में नहीं बिलीव करता। तो जब भगवत गीता शुरू होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं कि भाई तुम इन लोगों को मारने से क्यों दुखी हो रहे हो, ये तो इटर्नल है, ये तो आत्मा चिरंतन है, कभी मरती नहीं। और अगर भाई ये तो अगर इन्हें मार दोगे तो इनको दूसरा शरीर मिल जाएगा, इसमें दुखी होने की क्या बात है। अब उसके अलावा कृष्ण ये बोलते हैं, काफी बार ये बात समझाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर मान लो तुम ये मानते हो कि आत्मा नश्वर है, सिर्फ अभी जन्म हुआ है और अभी मृत्यु हो जाएगी, कोई दूसरा जन्म नहीं है और आत्मा कहीं नहीं जाती, तो भाई जो चीज, और लेकिन एक बात तुम्हें पक्की है कि कभी ना कभी मृत्यु तो निश्चित है, तो जो चीज नश्वर है उसके लिए भी क्या टेंशन लेना, जिसको तो गारंटी है कि ये चली ही जानी है। भाई जो चीज को बचा सकते हो उसके लिए तो दुखी भी हो, लेकिन जब मृत्यु निश्चित है तो उसके लिए क्यों दुखी होना। तो कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही स्थिति में तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप मानते हो कि कर्म आपके दुखों के लिए जिम्मेदार है और आपको दुख दे रहा है और आपकी खुशी में बाधा पहुंचा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि ये रैंडम है, कोई रीजन पुराना नहीं है, मैं कर्म और पूर्व जन्म में बिलीव नहीं करता, तो भी आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एक बात श्योर है कि दुखों की मार दोनों को पड़ रही है, कि चाहे वो कर्म में बिलीव करता है चाहे नहीं करता है। तो एक तरीका यह है कि आप वर्जिश करके पहलवान बन जाओ। पहलवान जो लोग होते हैं ना, बॉडी बिल्डर, उनको लोग 2-4 मुक्के मारते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉक्सर लोग हैं ना, वो मुक्के झेलने के आदी हो जाते हैं, तो क्यों ना बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, दोनों ही अवस्था में आप मार से बच सकते हो, या आपको दर्द नहीं होगा। मार पड़ना ना पड़ना एक बात है, दर्द होना ना होना दूसरी बात है। तो यानी कि कृष्ण उसमें कहते हैं
कि डेवलप, जैसे रोग हैं, आप इम्यूनिटी डेवलप करते हो, रोगों से बच जाते हो, इन्फेक्शन तो चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, एज कृष्णा हैज क्लियरली एलैबोरेटेड इन भगवद गीता, तो आप दुखों सुखों के साइकिल के और ये जो दुखों की मार है उसकी सहन शक्ति डेवलप कर लेते हो और आप दर्द से बच सकते हो। अब हम आगे ये पढ़ते हैं कि भाई भैया ये जो खुशी की बात कर रहे हैं भगवत गीता, अब हम आते हैं भगवत गीता पे। थोड़ा अभी ये पहले का डिस्कशन हो गया कि भगवत गीता क्या क्या बातें कहती है। कि भगवत गीता कहती है कि खुशी जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो अब ये खुशी के जो 3 पैकेज बताए गए हैं, जैसा आपको ट्रैवल में पैकेज मिलता है, तो इसी तरह से एक स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेज ये है कि जो सबसे कॉमन पैकेज है कि दैट हैप्पीनेस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंसेस विद द अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से या तो सामान या किसी तरह को एंजॉय करने के माध्यम से जो खुशी प्राप्त करना चाहते हो एक्सटर्नल चीजों से, वो शुरुआत में कुछ मोमेंट्स के लिए नेक्टर यानी शहद की तरह प्रतीत होती हैं, लेकिन बाद में जहर की तरह जलती हैं। इस तरह की जो प्रसन्नता है उसको मोड ऑफ पैशन बोलते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड हैप्पीनेस पैकेज है जो पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। फिर एक उससे भी घटिया पैकेज होता है कि जो लोग जिंदगी में कोई मेहनत नहीं करते, कोई एफर्ट नहीं करते, जो लोग लेजी हैं, सोते रहते हैं, बिल्कुल जिंदगी में किसी तरह का कोई एंटरप्राइज नहीं किया, उन्हें कुछ मेहनत नहीं करी, जो सोने और लेजी होने में बिलीव करते हैं, माँ बाप का पैसा अगर हुआ या चोरी चकारी से पैसा मिला उसको खर्च करके, मतलब अजीब सा दुनिया में है, उनको कहते हैं कि ना उनको शुरुआत में, उनको तो खुशी पता ही नहीं होती, उन्हें ना शुरुआत में मिलती ना बाद में मिलती। तो वो एक मोड ऑफ इग्नोरेंस का पैकेज है। अब इसके अलावा जो तीसरा जो हमारा प्रीमियम पैकेज है वो क्या कहता है, जो हमें समझना है और इसे हमें खरीदना है। तो इसमें ये कहते हैं कि that which in the beginning may be just like poison but at the end is just like nectar which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness। अब ये बड़ा डेंजरस पैकेज है कि आपको शुरुआत में वो चीज जहर की तरह लगेगी, जैसा भी हमने पहले बात करी, शुरुआत में शहद की तरह और आखिरी में जहर की तरह। लेकिन ये कह रहे शुरुआत में जहर की तरह लगेगी। आपने देखा कि जैसे बच्चा मेहनत करता है तो पढ़ाई में उसे बहुत टॉर्चर मिलता है जब बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन उसके बाद में उसको अचीवमेंट बहुत अच्छा होता है। एक रिलेटिव एग्जाम्पल है, वो बात अलग है कि उसमें भी आगे समस्या है, लेकिन यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ शुरुआत में बड़ा एफर्ट लगता है, जैसे कि इफ यू ट्राई टू डू सेल्फ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तो आपको पहले अपने जीवन में संयम मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारी अनवांटेड चीजें साइड लगा के धीरे 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 साधना करके यू हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। लेकिन उसके बाद में आप बॉक्सर बन जाओगे, किसी तरह की दुख तकलीफें आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। लेकिन शुरुआत में उसमें तकलीफ होती है क्योंकि मन नहीं लगता है साधना करने में, मेडिटेशन करने में या भगवान को याद करने में। तो उस तरह का जो पैकेज है वही हमें अल्टीमेटली रिलीव कर सकता है। अब ये जो वैदिक प्रोसेस है, इसके अंदर जो 3 तरह की प्रसन्नता है, उसके बाद में भगवत गीता में भगवान ये क्या कहते हैं कि one who is not connected with the supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace। अब ये मेन तो कृष्ण ये कहते हैं कि भाई जीवन में अगर आपके शांति नहीं है तो आप खुश रह ही नहीं सकते। अगर आपको तरह तरह के डिस्टर्बेंसेस सता रहे हैं तो आपके प्रसन्नता के कोई चांस नहीं। और डिस्टर्बेंस सता रहे हैं तो डिस्टर्बेंस की मार तो पड़ेगी, लेकिन आपके सहन शक्ति कहाँ से आएगी?
वो है स्टडी माइंड एंड ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। 2 फार्मूले आपको नोट करने हैं कि इन्हें कैसे, और ये कृष्ण ने बोला है, ये एक्यूरेट एंड प्रॉपर फार्मूले, ठीक है। तो इनको कोई क्वेश्चन है? ठीक है, एनीवे मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी। तो ये जो एक्यूरेट फार्मूले हैं उनसे हम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन या अपनी जो कैपेसिटी है टू टॉलरेट मिजरीज एंड अटेन हैप्पीनेस, ये दोनों चीजों को अचीव कर सकते हैं। कि जब हम पीस की बात करते हैं कि पीस कैसे अटेन होनी है, तो पीस अटेन होनी है स्टडी माइंड, यानी माइंड हमारा स्थिर हो, हमारी जो बुद्धि है वो इस संसार के लेवल से ऊपर उठी हुई हो, और हमारा जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ एस्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि ये स्टडी माइंड और ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस ऐसे फ्री में हवा में नहीं आता है कि आप ऐसे ही कह दो कि ना भाई खरीद के दे दो, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसके लिए एक प्रोसेस लगता है। कहते हैं कि भाई जैसे कि आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए, उसकी ऑक्सीजन कम हो जाए, तो आप उसके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हो। अब आप उसके पर चढ़ जाओ, भाई ऐसे हवा में ऑक्सीजन है, तुम लेते क्यों नहीं? उस पर चढ़ जाओ बुरी तरीके से, वो ऑक्सीजन ले लेगा। अरे भाई वो सिक है, बीमार है, उसके नॉर्मल रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी नहीं रही, हिज लंग्स आर इन्फेक्टेड, ओके, दैट इज व्हाई ही नीड्स एडिशनल एंड पावरफुल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, अ कंटिन्यूअस सप्लाई, ताकि वो सरवाइव कर सके। उसी तरह से जैसे हम लोग इस जीवन में जो भव रोग लग गया है, संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम आ गए हैं, तो अल्टीमेटली भाई हमें क्या है कि कहाँ जाना पड़ेगा आनंद के लिए। क्योंकि आनंद तो यहाँ तो दूसरे लोग फेसबुक के माध्यम से और ऐड के माध्यम से मुझे साबित करने पे लगे हुए कि मैं कितना दुखी हूँ, ठीक है। तो संसार के लोग तो हमें हैप्पीनेस दे नहीं सकते, तो हमें कहाँ जाना है, यानी हवा से ऑक्सीजन तो हम ले नहीं सकते, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर में चाहिए जिसमें खूब अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन होती है, तब जाके हमें ऑक्सीजन मिल सकती है। जैसे हमें प्यास लगी है, आप कह दो कि नहीं हवा में मॉइस्चर है, ऐसा मुंह खोलो, हवा अंदर लो, मॉइस्चर साइड कर लो, तो ले लो। ये भी बड़ा मुश्किल है, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। तो भैया पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किसी जलाशय में जाना पड़ेगा या टोटी में, जहाँ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर हो, तो वहां से हम जितना चाहिए पानी ले सकते हैं। तो सच्चिदानंद अगर हम स्वरूप हैं, तो हमें भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, इसीलिए हम आनंद की खोज करते रहते हैं। तो इफ वी अप्रोच कृष्णा हु इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, देन वी शैल बी एबल टू अटेन अल्टीमेट हैप्पीनेस। बट दिस हैज अ प्रोसेस एंड अ बिट लॉन्गर प्रोसेस। इसके कुछ एफर्ट्स तो इमीडिएटली मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सारा एफर्ट, लेकिन जो आपका जैसे ही ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, तो इकोनॉमी क्लास की राइड एयरप्लेन की तो आपको तुरंत मिल जाती है। अब आपको बिजनेस क्लास थोड़े दिनों बाद मिलता है, और थोड़े दिनों बाद आपको चार्टर्ड फ्लाइट मिल जाती है, और उसके बाद में आप हवाई जहाज के ओनर बन जाते हो। ये स्टेजेस हैं भक्ति की। तो अब हमें ये समझना होगा कि भाई ये जो हमने अभी इतनी सारी बातें करी, उसको आगे प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है। तो प्रैक्टिस करने का ये है कि अभी हमने सारी बात करी कि भाई कि भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता का हम अभी एक और श्लोक पढ़ेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance in the due course are like appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception. O scan of birth, one must learn to tolerate them without being disturbed. अब इसमें हमारे लिए काम की क्या बात है कि ये दुख हमारे सेंसेस के परसेप्शन से है, पर ये परसेप्शन है हमारा। भले हमारे पूर्व जन्म के कर्म खराब हो, लेकिन आज हम साधना करके अपने सेंसेस को कंट्रोल में करते हैं, उसके परसेप्शन को सेटराइट करते हैं, तो देन वी कैन लर्न टू टॉलरेट। कृष्ण यही कह रहे हैं, लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। अब लर्निंग कैसे होगी?
और वाकई में ऐसा होता है कि जब व्हेन यू लर्न यू आर नॉट डिस्टर्ब। तो इसको जो हम फॉर्मूला कह रहे हैं कि भाई सेंस परसेप्शन से हमें क्या समझना है कि हमें सेंसेस को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि सेंसेस और माइंड के माध्यम से जो कुछ हमारे अंदर इनपुट होता है वही आउटपुट जाता है। मतलब जो हम आंखों से देखते हैं वही सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जो करते हैं वही रिजल्ट होता है, और जो रिजल्ट होता है उसी से हमें खुशी या दुख प्राप्त होता है। तो सबसे हमें फिर आगे आने वाले समय में अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, ताकि उसका रहस्य जानने चाहिए। और इसका तो यह है कि आप अगर खुद ही भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं या फिर खुद हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करते हैं तो वेरी क्विकली यू कैन लर्न ऑल दिस फॉर्मूले, ओके, एंड देयर इज नो लॉस। मतलब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको जी 50 लाख या 1 करोड़ का या 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के बिना की ये चीज़ है, खुद के प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो ये आप इस माध्यम से ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड हम आने वाले सेशंस में माइंड कंट्रोल सीखेंगे, माइंड कंट्रोल के फर्दर प्रोसेस इसको सीखेंगे। I think we can be happy or achieve happiness if we can make others happy. Then only we can achieve happiness. हाँ, ऑफ कोर्स वो तो बीच में बिल्कुल डिस्कस हुआ कि हैप्पीनेस का जो एक लेवल ये है, जो हम सब अपने सेल्फलेस मोटिव से, सेल्फिश मोटिव से ऊपर उठ के कि मैं कैसे खुश हो सकूं, अगर हम दूसरों को खुश करने के प्रयास करते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि जो फर्दर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि जहां हम अपने अतिरिक्त सोल, अदर सोल भी क्या है एक्चुअली कि वो सुपर सोल का तत्व है। जो परफेक्ट पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं कि जो दूसरे के अंदर भगवान का वास देखते हैं। देखो हर एक जीव के अंदर परमात्मा का वास है। मदर टेरेसा ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, वो तो जो लेपर्स हैं उनकी सेवा करती थी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग लाते थे जिनको छूते ही लोगों को इन्फेक्शन हो जाता था, उनकी सेवा करते थे वो। एंड उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैंने उनकी बुक पढ़ी थी बहुत पहले, तो उन्होंने ये बात कही कि we cannot serve the other person until and unless we see the presence of God in that person. इसीलिए जब तक दूसरे जीवों में हम परमात्मा का वास देखने की प्रैक्टिस नहीं जा, फर्स्ट क्लास डिवोटी श्रीमद् भगवद गीता में, भागवतम में यही बताया गया है, जो हर एक व्यक्ति में, अच्छे बुरे में, कुत्ते में, कुत्ते को खाने वाले में, सब में भगवान का वास देखता है, वही परफेक्ट हो सकता है, वही हैप्पी हो सकता है, सुपर परफेक्ट। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, हवाई जहाज के ओनर वाली स्टेज, मतलब आपको इकोनॉमिक क्लास के टिकट तो तुरंत ही मिल जाती है। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र, भगवत गीता की स्टडी, भगवत गीता की बुक में ही ऐसी पावर है, आपको हाथ में लगाते हो। पीपल हैव टेस्टेड द प्राणा स्ट्रेंथ ऑफ द मियर बुक ऑफ भगवत गीता। उसकी मियर प्रेजेंस आपके हाथ लगाते ही आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो भाई आपको प्रकृति ने जन्म दिया है इस भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के जो सुप्रीम इंटेलिजेंस को आप यूज करके अपनी बेहतर नहीं जीने बना सकते हैं, तो फिर यू आर मिस यूटिलाइजिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका, आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को काफी दूर से देखता है, उसमें आज आपने 3 चीजें बड़ी अच्छी बताई। एक तो आपने कहा कि रिलेशनशिप जिसके अच्छे होते हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है या किसी के साथ है। दूसरा आपने बताया कि एप्रिसिएशन। ये 2 चीजें तो मैं जब अमेरिका में गया तो मैंने ये चीजें यहाँ आके इमोहा के अपनी फैमिली मेंबर्स को बताई कि वहां पे जरा सा काम आपने अच्छा किया, सबसे पहले वो ये सेंटेंस यूज करते हैं, आई अप्रिशिएट।
और तीसरा आपने बताया एक्सेप्टेंस, कि बच्चों को एज इट इज, उनमें गलतियां ना निकालते हुए एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। इसमें तो 3 चीजें तो आपने बहुत बढ़िया बताई। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये हमारी पहली क्लास है, तो अगर हम स्टेप टू स्टेप चले तब हम वैदिक के आगे चलना शुरू करेंगे, क्योंकि ये 3 चीजें लेते लेते हमारी जिंदगी बीत गई। मैं 72 का हो गया ये देखते देखते। अमेरिका में जब गया तो लगा मेरे को कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, ये हर बात पे अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि अगर मेरे इमोहा फैमिली मेंबर इस चीज को एग्री करते हैं तो इन 3 चीजों का हमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो प्रभु जी कह रहे हैं वो तो एक बहुत एरोप्लेन वाली बात है, वो उसके लिए हम बाद में ट्राई करेंगे। तो इसके ऊपर अगर आप सहमत हैं तो बताइए। पहले इकोनॉमिक क्लास का स्टार्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाभरी साहब। देखिए हमारे मोहा में एक चीज तो बड़ी कॉमन है कि हम लोग हर एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं और बड़े प्रेम से हर एक को अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने जीवन में से निकल के कई चीजें जो हमारे को म्यूजिक दिखाते हैं या कोई टॉक्स करते हैं तो हम उनको अप्रिसिएशन देते हैं पूरी के देखिए इनके पास ज्ञान है, उनके ज्ञान को हम अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे मोह में ये 3 चीजें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग, आई थिंक, इफ यू एग्री विद मी। बाकी तो धीरे धीरे इंसान अपने आप ही जब एक राह पकड़ लेता है तो उसको रास्ता भी भगवान ही बताते रहते हैं कि आप इस राह पे ऐसे चलो। तो दिस इज माय नॉलेज, आई डोंट नो। Everybody is out. Everybody is coming out. सब नमस्कार सर, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हेलो। Everybody is coming out. सब अपने आप ही आता है, वो हमें सब किसी को ही। नमस्कार सर, मैं मोहिनी बोल रही हूँ और बहुत अच्छा सेशन था आपका। I'm so grateful to you. स्टडी माइंड को कैसे हम अटेन करें और ट्रांसेंडेंटल स्टेट इसके लिए आप थोड़े से हमें स्टेप्स और बताइएगा। ये 3 तो मैं मानती हूँ और इसको हमने काफी हद तक अपनी जिंदगी में ले रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। तो स्टडी माइंड के ऊपर कैसे उस स्टेजेस पे जाएं, क्योंकि शायद आप हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में और जब हम जिंदगी के एक दौर में अकेले पड़ जाते हैं और शायद अपनी भागदौड़ में हम रिश्ते भी नहीं निभा पाते, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं लाइफ में और जब सोचते हैं तो पता चलता है रिश्ते कहीं गुम हो गए। तो कैसे उसको अब बैलेंस किया जाए, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। माता जी, वैसे तो ये है कि ये जो नेक्स्ट प्रपोज टॉपिक है वो बहुत एलैबोरेट इन्हीं दो वर्ड्स आपने बोले ना, स्टडी माइंड एंड ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा। और फिर भी आपने क्योंकि प्रश्न पूछा है तो मैं उसकी तरफ इंडिकेटर दूंगा कि जो चीज़ हमने आज डिस्कस करी उसी को मैं थोड़ा रिपीट करूंगा कि स्टडी माइंड के लिए सबसे पहले तो क्या डिस्टर्बेंस फ्री होना होता है। डिस्टर्बेंस फ्री यानी कि हम जितना पूरी दुनिया की चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, यानी इनपुट दिमाग में जितना जाता है, जितनी सारी चीज़ों से, उतना दिमाग में शोर और तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब उसको फिल्टर आउट करके स्टडी तरीके से अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि हमें ये समझना होगा कि आसपास के जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमें अनस्टडी करते हैं खासकर। अब स्टडी करने का क्या तरीका है जो हमने डिस्कस किया कि हम दूसरों को दें और एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना मुश्किल है। अब आप सिर्फ देने की प्रवृत्ति कब कर सकते हो? जब आपको कहीं से होलसेल में मिल रहा हो। ठीक है, जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हो तो आपको किसी और से कुछ नहीं चाहिए होता है एंड वो बहुत सरल प्रोसेस है। और जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो पूरे हम रिजर्वायर से कनेक्टेड है, सारी एनर्जी तो हम वहां से डिराइव करते हैं। हमें इस पूरे संसार से किसी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो अब यह है कि वो अभ्यास बहुत सरल है एक्चुअली माता जी। इसमें सतयुग में लोग लाखों साल तक तपस्या करते थे, उनकी आयु होती थी, करते थे, तब भी नहीं अचीव कर पाते थे। विश्वामित्र मुनि स्टडी माइंड अचीव नहीं कर पाए, एक अप्सरा आई लुढ़क गए। ठीक है,
क्योंकि लेकिन कलयुग में क्या है कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये एज ऑफ कली है, लेकिन इसके अंदर मात्र हरि कीर्तन करके लोग स्टडी माइंड अचीव कर सकते हैं, द हाईएस्ट परफेक्शन। कई लोग तो इंतजार करते हैं भैया सतयुग हो जाए, कलयुग आ जाए, मैं आराम से अचीव कर लूं। सतयुग में हमसे ना हो पाया इतने प्रोसेस में। तो इसलिए क्या है, बहुत सरल प्रोसेस है। एंड भाई जैसे हम इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य है वो क्या कहते हैं कि हमारा बड़ा कि भाई चैंट, डांस एंड ईट। भाई आप भगवान का नाम चैंट कीजिए, डांस कीजिए कीर्तन के ऊपर, और भगवान का प्रसाद खाइए, और कंप्लीट हो गई कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसमें बहुत जोर लगते नहीं है मतलब। लेकिन अब ये है कि हम ट्राई करते हैं तो हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप देखो कि पूरी दुनिया के ऐसे ऐसे देश जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, मतलब पाकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक हरे कृष्णा फैली हुई, क्योंकि लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जहाँ पे सरकारें पीछे पड़ी रहती हैं, नहीं तुम नहीं कर सकते हरे कृष्णा, बैंड है हरे कृष्णा बहुत सारे कंट्रीज में, वहां पे लोग करते हैं क्योंकि लोगों को बेनिफिट, फायदे की चीज कौन नहीं करता है। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और ये कि दूसरे को देने में बड़ी खुशी होती है, ये बात हमने जिंदगी भर इसको प्रैक्टिस किया, और ये बात सच है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिसके पास बेतहाशा आए वो नहीं, जिसके पास नहीं होता है, कम से कम में भी देने का जो दिल होता है वो खुदा हमारे अंदर डालता है, हमारे अंदर वो शक्ति देता है कि हम किसी को दे पाए, ना होने पर भी। ये सब हमने प्रैक्टिस करके देखा, ये आप सच कह रहे हैं, ऐसा होता है और बहुत खुशी मिलती है। जब ढेर है उसमें से दे दिया तो क्या किया, कुछ नहीं। जब आपके पास भी नहीं है, आप अभाव में, फिर भी आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति हमको कौन देता, खुदा ही देता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, बहुत अच्छा था आपका आज का वचन, और हमेशा ही अच्छा था, और आज भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू माता जी। वैसे जो मेरा इंटेंट था उस पे कि पैसा तो आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप दे दो, पैसे की बात है जी। लेकिन जो होता है ना भगवत प्रेम, जब आप दूसरे को देते हो ना तो आपको कहीं से मिल रहा होता है, जब भगवान से कनेक्टेड होते हो। तो मैं भगवत प्रेम और भगवान की ब्लेसिंग्स की बात कर रहा था, पैसे की नहीं। पैसा तो ऐसे लोग हैं, हाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी दे देते हैं, उधार लेके दे देते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपने खुद ही थोड़ा कहा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी भगवान है, हर आदमी में भगवान का रूप है। तो क्लास कॉन्शियसनेस, पर्सनालिटी क्लैश, ईगोइज्म, कास्टिज्म, पॉलिटिक्स इतना होता है आदमी के ऑफिस में या सराउंडिंग में जहाँ भी काम करता है, कमर्शियल वर्ल्ड में या अपने किसी दुनिया में। तो प्रैक्टिकल इसको फॉलो करना और हर आदमी भगवान को देख के उसको एक अतिथि मतलब उस तरीके से कैसे, मतलब कितना पॉसिबल है, हाउ टू लिव विद दिस फिलॉसफी कि हर आदमी में ईश्वर है, उसकी सेवा की जाए, उसको दिया जाए, उसको अतिथि की तरह माना जाए। और ये जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब होता है, जो मैंने 4-5 चीजें कही। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और शायद अगर मैं मंदिर में रहने वाला प्रचारक होता तो शायद मेरे को कम होता, लेकिन मैं खुद क्योंकि सरकार में जिंदगी भर से काम कर रहा हूँ एंड मिनिस्ट्री के साथ काम करता हूँ, और जो लोगों ने सरकारी तंत्र में काम किया है उन्हें पता है कि किस तरह की उसमें समस्याएं होती हैं, किस तरह से किसी चीज़ को अकम्प्लिश करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके अंदर भी जो आपको मैंने अभी प्रिंसिपल डिस्कस किया ना, ये मैंने अप्लाई करके देखा कि डिफिकल्ट लोगों के साथ इनिशियली क्या रहता है कि अगर आप सही इन्वेस्टमेंट जब शुरुआत में करते हो ना तो उनको बात समझ में नहीं आती, वो आपसे ऐसे रिएक्ट करेंगे कि जैसे कि मतलब एंड दे विल रिएक्ट टिपिकल वे, एंड आप खुद ऑफेंड से हो जाओगे, आपको अपने पे संयम मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा 1-2 के बारे में दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपके अप्रोच डिफरेंट है, एंड देन दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू लाइक नोबडी एल्स। मतलब उसमें क्या रहता है कि शुरुआत में वो आपसे अजीब से रिएक्ट करते, कहते हैं यार ये कैसी बातें कर रहा है। जैसे कि भाई मैं कई बार मीटिंग्स में बोलता हूँ कि सर डिसीजन वो लीजिए विच इज इन वेलफेयर ऑफ पब्लिक। अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आपको बाद में कोई, अगर आप किताब या रूल को बचाने के लिए डिसीजन लोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लोगे डिसीजन
तो आपको कभी भी कहीं ऑडिट में कहीं यू आर रेडी टू एक्सप्लेन, मतलब तो इस तरह की चीजें हैं कि ये ऐसा नहीं है कि देखिए ओवरनाइट नहीं आता है। दिस एटीट्यूड इज, देखिए मैं अपने गुरु को अब से फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में था 98 से, तब से वो मेरे को गाइड कर रहे हैं। तो स्लोली ग्रेजुअली भाई इतने साल हो गए उस अभ्यास करते हुए, तो धीरे धीरे अभी भी कोई परफेक्शन कोई थोड़ी आया है, लेकिन अभ्यास करते करते यू डू बेटर डे बाय डे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप आज कोई पैकेज ले गए एंड वो दूसरे दिन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट भी आप करते हो तो ग्रो करने में टाइम लगता है। उसी तरह से अभ्यास अपने व्यवहार का, फिलॉसफी को समझ के हायर वैल्यूज को अडॉप्ट करने का आपको टेस्ट करना होता है। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, लेट मी अश्योर यू, क्योंकि पीपल विल रिएक्ट टिपिकली। अगर आप उनसे अच्छा दोगे ना तो भी वो आपसे टिपिकली रिएक्ट करेंगे। तो आपको अपना संयम मेंटेन करना, फिर आपको रिजल्ट के लिए वेट करना होता है। धीरे धीरे अगर इफ यू डू गुड, एवरीबॉडी स्टार्ट्स, इवन जो लोगों को कहते हैं कि भाई ये तो बहुत क्रिकेट है, इनकी किसी से नहीं बनती, वो लोग भी दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू इफ यू इन्वेस्ट गुड। तो सर ये सब माना गया है कि गीता एज इट इज, ये सब चीजें मानी गई है, पढ़ाना पुराण एज इट इज पढ़ाना, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड, आईटी चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और दूसरे 3 चेंजेस, वो सब चेंजेस मॉडिफाई करना पड़ रहा है। वो सब मॉडिफाई करके एक मॉडिफाइड वर्जन एक सामने आ रहा है, जो आप बता रहे हैं कि ये सब किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए और फिर रिजल्ट आएंगे, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अपना नया उसको शेप पे देंगे। चेंज ऑफ शेप की मानी जाती है कि गीता का ओल्ड रेलेवेंस, जो मतलब ये खुद लोग मानते हैं, जो प्रचारक है वो भी मानते हैं कि हमें भी दिक्कत आती है, बट इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कहा तो जरूर एफर्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। कंट्रीज भी मानती हैं, बट कंट्रीज भी फायदा होता है इसको पूरा करने से, इसको इस फिलॉसफी को पूरा मानने से, पूरा 100% मानने से। तो the sort of investment which was bringing with everybody. You read, understand, apply in your life. You read, understand, realize, and realization means when you apply in your life. भाई इसीलिए तो हम लोग को इतने सालों लग जाते हैं। अगर बुक की तरह पढ़ना हो तो 2-4 दिन में खत्म हो जाती है। तो मतलब 25 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी भी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आता भगवद गीता का। तो सर बाबा, so thank you. Kind of requirement you want? अरुण जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरुण जी एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ ऋतु जी। ऋतु जी एक प्रश्न। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विल टेक फ्रॉम सतता जी। हाँ जी पूछिए। सोसाइटी का विजन बताइए आप, अगर आप माने क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस को। अरुण जी आपकी आवाज आई नहीं। बिल्कुल, स्वतंत्र जी विल टेक योर लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड विद दिस सेशन। क्या जीवन में गुरु बनाना जरूरी है? गुरु बनाना चाहिए? गुरु के बगैर तो नर्सरी नहीं पास होता। नर्सरी भी आप स्कूल बच्चे को बोलते वो टीचर उनका गुरु होता है। ABCD नहीं सीख सकता बच्चा बिना गुरु के। स्पिरिचुअल परफेक्शन तो बहुत बहुत बड़ी चीज, इम्पॉसिबल। नॉलेज कम्स फ्रॉम पर्सन हु एक्सप्लेन्स यू। अगर माता जी किताबों से सिर्फ सब कुछ हो गया तो यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत खर्चा लगता है। इवन आप रियलाइज करते होगे कि अगर ऑनलाइन के बजाय आप चारों तरफ देख रहे हो, फिजिकल प्रेजेंस में जब आप कोई चीज समझते हो उसका इम्पैक्ट ग्रेटर होता है। मतलब तो उसी तरह से गुरु बनाना सुपर एसेंशियल है, एंड ही विल मेक यू रियलाइज, क्योंकि ऐसा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग द पाथ एंड वॉकिंग द पाथ। मतलब ये कैसे पता चले कि सही गुरु मुझे कहाँ मिलेगा या मैं किसको बनाऊं? इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए? ये आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, ये भगवान का डिपार्टमेंट है। सही गुरु को अवेलेबल कराना कृष्ण का काम है, कृष्ण को अवेलेबल कराना गुरु का काम है। तो बाय योर सिंसियर डिजायर इट एंड दैट यू नीड नॉट वरी, दैट इज नॉट योर डिपार्टमेंट। आप अपना काम कीजिए, डिजायर कीजिए कि मेरे को सदगुरु मिले, एंड वो कृष्ण श्योर शॉट, मेरी 100% गारंटी है आपको मिलेगा। नीड नॉट वरी अबाउट व्हाट कृष्ण हैज टू डू। चलिए, so that was the Arun ji that was the last question. Please, I'm so sorry. Okay. We are already at 6:32, so we need to end the session. I know it is a very, very interesting session, and
ये ऐसा टॉपिक भी है जिस पे हम जितने भी क्वेश्चंस या जितनी भी चीजें बोलने शायद फिर भी टाइम कम पड़े इसके लिए. So धर्मराज जी, thank you so much for such an amazing session and जिस तरह से आप हर चीज एक्सप्लेन करते हैं इतने सिंपलिस्टिक वे में, इतने ब्यूटीफुली. तो रितु जी नेक्स्ट सेशन में हैप्पीनेस कंटिन्यू रखना है या क्या, पूछो सबसे. नहीं, वी विल डिस्कस इट विद धर्मराज जी, आई थिंक, बिकॉज उनको पता होगा इस टॉपिक के ऊपर कितना एक्स्ट्रा वो बोलना. सो आई थिंक धर्मराज जी इज द बेस्ट पर्सन टू पिक अप द टॉपिक. सो आई थिंक न्यू टॉपिक्स लाते रहेंगे बिकॉज इसके ऊपर अगर और डिफरेंट फैसेट्स हैं. सो अगेन धर्मराज जी आपको देखना पड़ेगा अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं. ये वाले का जो नेक्स्ट है ना, जो अभी स्टडी माइंड के एक माता जी ने जो डिस्कस किया था, हाउ टू अचीव स्टडी माइंड एंड ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, जब क्वेरी वहीं से आई है तो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कि इसका जो नेक्स्ट, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर होते हैं, तो हैप्पीनेस का अब अगला चैप्टर है स्टडी माइंड. तो बेटर है अगर हम स्टडी माइंड के बारे में. एग्जैक्टली. सो ये आप दूसरे उस पे लेके जा रहे हैं, बट वो हैप्पीनेस का ही पार्ट है, वो आपको ही पता है. बट हाँ जी, सो ठीक है. सो आप, मैं लाइक आई सेड, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर ऑन. जैसे आपने कहा कि इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप यही है. So कैसे कहेंगे नेक्स्ट मंथ जब भी हम इसको ले पाएंगे, we will have a word on that. So thank you so much धर्मेंद्र for such an enlightening session and I love the way आप इतने patiently सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं एंड आपके आंसर्स भी जब क्वेश्चंस के साथ इतने प्रैक्टिकल और ऐसे होते हैं, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, एंड फैक्ट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आंसर्स. कोई उसमें ये नहीं कि यू आर ट्राइंग टू शुगर कोटेड एंड ट्राइंग टू से कि नहीं इससे करेंगे तो ही ये होगा. दे आर जेन्युइन आंसर्स व्हिच आई रियली लव्ड अबाउट यू, जितने भी आपने अभी जैसे क्वेश्चंस पूछे गए. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन धर्मराज जी for this wonderful session. हाँ जी. Thanks a lot everybody, for being such a lovely audience, and I enjoyed a great. Thank you. We can discuss on Food for Life by ISKCON. That is a great service to the community. Thank you, sir. So I know last time भी जब धर्मराज जी आए थे, it was such a beautiful session, and again today when he is here, मतलब I just love the fact जितनी calmness से और जितने अच्छे से वो बोलते हैं, इतनी patiently, it's so wonderful hearing that, and the kind of things that you put across बिल्कुल जो relatable होती हैं. So thank you so much for this very, very enlightening session, and we will see you again here very, very soon, Dharamraj ji, if you permit, and with the new topic that we were talking. So ladies and gentlemen, with that we come to the end of today's session, and we will all meet tomorrow at 8 o'clock for a physiotherapy. And just to let you all know, tomorrow afternoon we have a address by Swamijit Roy. Request all of you to share to as many members as you know, because he is specially coming here to talk to each and every member of the Emoha family because of this pandemic, not only as to what is happening and all, but to the fact that how, like I was already talking about these things a few days back about the isolation wards and other things that we have introduced to help out our elders. So everything that we are rolling out as of now, so he would love to speak about all that and let you all know that how we are there for our Emoha elders and helping them out during these very, very difficult times. So new things have been built, which I've discussed. So for more clarification and all, he wanted to address himself rather than just a message going. So please make sure that you all join at 12 o'clock, and please do pass on the message to as many people that you know.